Guys, good evening. So, as promised, today we'll be discussing about the history chapter. अब बोलोगे सर आप तो कल मैथ्स में थे, आप हिस्ट्री में कैसे आ गए हो? Technically, I'm a teacher and I just love to teach. So you can ask me to teach anything at all whatsoever you feel like. यदि आपको लग रहा है कि I cannot teach history, please do write in the comment section that I was the worst teacher. And of course, I'll not continue with the same topic. Don't worry from tomorrow. But of course, if your comments do not say so, then of course I'll be continuing with this particular topic. Okay. Now, this is all about the part of jokes, the light-headed jokes. Okay, but right now the topic actually does not deal with the part of jokes. So this is from a topic, or by the way, a particular say in social studies you already know that there is this particular thing known as history. And मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पूछा हुआ है, I am smiling because जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पूछे हैं हिस्ट्री, सर हिस्ट्री ना, हिस्ट्री इज हाई स्टोरी. मैंने कहा क्यों सर? हिस्ट्री इज सो बोरिंग सर. मालूम है सर, जब भी हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाती है. मैंने कहा बट क्यों सर? इतनी डेट्स होती है ना उसके अंदर कि बस ये है तो ये है, उसने इस पर कब अटैक किया था, उसने ऐसा कब किया था, क्यों किया था, कैसे किया था. अब सर वो ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें आके जानने की जरूरत क्या है कि तब क्या हुआ था. नाउ लेट्स कम ऑन टू द सीरियस पार्ट ऑफ दिस. शॉकिंगली लाइफ के अंदर फ्यूचर हिस्ट्री ही डिसाइड करते हैं. सर फ्यूचर हिस्ट्री कैसे डिसाइड करेगी? प्लीज अंडरस्टैंड, हिस्ट्री से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो. यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिस्ट्री. हाउ? यू कैन लर्न व्हाट ऑल मिस्टेक्स वर बीइंग मेड बाय एन नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल व्हिच वी टुडे आर नॉट सपोज टू मेक. भगवान ने हमें एक लाइफ दी हुई है और एक लाइफ में हम सारी की सारी गलतियां जो हमारे पहले वाले लोगों ने करी है, यदि हम भी वही गलतियां करें, डोंट यू थिंक इट्स अ बिट डिस्गस्टिंग? इट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑल टुगेदर. आप फिर से वापस से वही गलतियां दोहराओगे अगेन 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 अगेन, तो इसके अंदर आप आगे भी तो बढ़ ही नहीं पाओगे. एंड दैट्स द रीजन व्हाई हिस्ट्री इज ओवर देयर. अकॉर्डिंग टू मी, history should be taught in such a way so that it should create interest. तो सर इसका क्या मतलब है? आप बोल रहे हो कि हमारे टीचर्स बेकार हैं? नो नो, नॉट एट ऑल. इनफैक्ट आई opened the video saying that literally I am the worst teacher. So I don't know, it will be the first feedback from your side whether you love this topic or not. So what I have done is I have written some dates over here. बट मैंने जब ये लेक्चर चालू किया था तो मैंने अपने आप से आज एक ही प्रॉमिस किया था, ये लेक्चर देखने के बाद में ये टॉपिक जो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ऑफ कोर्स ये चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा. इट विल टेक अराउंड 2 days to 3 days. बट I promised one thing to my own self, that after seeing this video, the student should be just thorough with this topic. किसी ने सपने में भी उससे पूछ लिया, अच्छा बताओ ये क्या था, he should be able to say. So let us see whether I'll be able to, मतलब मैं अपने टॉपिक पर बेसिकली खरा उतरता हूँ या नहीं उतरता हूँ, whether I'll be able to stand on the said thing what I promised to myself, or whether I won't. That will be decided post, by the way, this 30 minutes of lecture. Now without the so-called bool bachan wale part से बाहर निकलते हैं, let's come directly to the topic now. Now what is this topic all about? This topic is of course from your own CBSE textbook, that is Nationalism in India. ये उसी का एक सब चैप्टर है and the name of the chapter is Nationalism in India. जिन लोगों ने आज ही मुझे ज्वाइन किया, जो लोग मुझे नहीं जानते, my name is Gautam Jain and of course I am not a history teacher, but of course I would love to teach history. Okay, now so what do you mean by this particular chapter's name, Nationalism in India? What do you mean by the word nation first? So let's underline this so that it creates a solid impact. Nation. What do you mean by the word nation? Let's take an example like this. आप में से बहुत सारे लोग जो अभी स्टडीज कर रहे हैं, ये बाद में जाएंगे जॉब्स के अंदर अपने जॉब्स करेंगे,
जॉब्स करने के बाद में these मतलब एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये लोग जाएंगे वहां पर नए फ्रेंड्स बनाएंगे, कई लोग वहां पर सेटल हो जाएंगे, कई लोग इंडिया वापस आएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर बार यही होता है। सो व्हाट इज न्यू? New is, every time a person from India reaches to either the Russia or by the way America or UK or any of the European country, Australia, Asia के अंदर जापान, जैसे मैंने बोला रशिया, गल्फ कंट्रीज, सारे के सारे आप कहीं पर भी जाओगे और सपोज कर लो माई नेम इज गौतम जैन, एज एन ऑफ कोर्स वाई टू सपोज माई नेम इज गौतम जैन, दैट इज सपोज आई गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस नोन एज दुबई फॉर डूइंग सम वर्क. Now they'll ask me a simple question. What is your name? Sir, my name is Gautam Jain. Okay, good. So from which place are you? Sir, I am from Pune. Pune. What is this Pune? What do you mean by the word Pune? Sir, no. We simply want to ask you which is your native country. My native country. Oh yeah, sir. I am from India. थिंक अबाउट द रिस्पॉन्स. जस्ट 1 मिनट पहले जाकर के दोबारा से देखो कि मैंने आके क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या सोचा होगा उसने मेरे बारे में. उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ से हूँ, मैंने बोला मैं पुणे से हूँ, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ ट्रू, बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट ही वांटेड टू आस्क वाज आप कौन से कंट्री से हो, और मैं उसको बोल रहा हूँ पुणे से हूँ. ही वांटेड टू नो मैं कौन से कंट्री का सिटीजन हूँ या एलियन हूँ, कहीं और से आया हूँ. एंड दैट इज व्हाट द बेसिक थिंग इज ऑल अबाउट. ये चैप्टर इसी चीज पे डील करता है, इंडिया. आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर विच विल टेक अराउंड 3 days, ट्रस्ट मी गाइज, यू विल बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आप कुछ भी बकवास कर रहे हो. ट्रस्ट मी, जस्ट हैव पेशेंस फॉर अराउंड 3 more lectures. नेशन मीन्स ऑफ कोर्स अ कंट्री. नेशनलिज्म मीन्स जब कंट्री की फीलिंग आदमी को अपने अंदर आने लगे कि मैं पहले मैं से ज्यादा उस कंट्री का हूं, दैट इज नोन एज नेशनलिज्म. सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू से गो टू दुबई और टू ऑस्ट्रेलिया और टू अमेरिका और टू रशिया और टू जापान और टू होनोलुलु, whichever place, if somebody is going to ask me who are you, I am an Indian. Oh, you are from India? Yes sir, I am from India. Okay, which place from India? Now I'll say I am from Maharashtra. Okay, from which place in Maharashtra? Sir, Pune. Okay. Yeah, we have visited Pune twice. Okay, sir, that's good. But पहला रिस्पॉन्स मेरा क्या होगा? I am an Indian. जब हम ये इतने प्राउडली बोलते हैं I am an Indian, अंडरस्टैंड जब वो फीलिंग आपकी अंदर से निकल रही होती है, जब आपका हर बॉडी का ऑर्गन पहले बोल रहा होता है कि yes, I am an Indian, that is known as nationalism. और ये नेशनलिज्म की फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है. एंड आप बोलोगे सर मतलब आप ऐसे बोल रहे हो सर, ये तो सर 60-70 ईयर्स ओल्ड लोग बोले तो समझ में आता है. ट्रस्ट मी गाइस, नेशनलिज्म की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू स्टे इन अ कंट्री. नाउ लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में क्या क्या होगा इन द CBSE बोर्ड. तो हम लोग पहले इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. विल बी गोइंग थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट. देन विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन इंडिया, who was the most important, who is the most important, and till centuries who's going to be the most important person, is going to be named as, and this is not what I gave him name as, ये पूरी दुनिया ने उनको नाम दिया हुआ है. His name was Mahatma Gandhi. So we are of course going to read a lot about a lot of movements. क्या हुआ था. See, आप लोग जब ये movies देखते हो, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर केवल एज अ फिक्शन कभी दिखाई जाती हैं. कभी कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, और आप अपना अपना परसेप्शन बना लेते हो. गांधी जी ना, उन्होंने तो बहुत ही, वो कभी लड़ाई नहीं करते थे, कभी फाइट ही नहीं करते थे. बट यू आर गोइंग टू, आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक, यू आर गोइंग टू understand what actually it means when he said the word do not fight, no violence, non-violence, peace, जो आजकल हम लोग बोलते हैं peace. So you will now understand how these so-called cool words actually came into play. Now let's talk about the topic first. Nationalism in India. So I already told you what do you mean by nationalism. It is that patriotic feeling for a particular country or that belongingness कि ये country मेरी है. That is known as nationalism.
वाई इन इंडिया? बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं और हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं. So as you all might be aware that Mahatma Gandhi went to South Africa. He went to South Africa not as a tourist but to complete his studies, and he was studying law. Okay, legal law, LAW. So he was studying law over there. After reading law over there, he saw a lot of discrepancy. Lot of discrepancies over there. Discrimination over there. What do you mean by the word discrimination? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जहां पर दो लोग होते तो हैं एक कंट्री में, बट दोनों को अलग अलग ढंग से ट्रीटमेंट मिलता है. इमेजिन करो आप अपने घर के अंदर हो और आपका कोई एक छोटा भाई है, और जब भी मॉम या डैड आते हैं और उसको हमेशा बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट करें और आपको अच्छे ढंग से ट्रीट ना करें. ऐसा नॉर्मली होता नहीं है आपके फैमिली में. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. यदि ऐसा हो, इमेजिन करो, और पूरे टाइम, लाइफ लॉन्ग, पूरे टाइम यदि ऐसा होगा तो आपके मन में एक फीलिंग आना चालू हो जाएगी that every time mom and dad treats only that particular fellow very nicely. जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो please shut up, just do not talk rubbish. So all of these things is known as discrimination. जब आप दो लोगों के बीच में अंतर, दूरियां लाना चालू कर देते हो. महात्मा गांधी ने वहां पर देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर दो तरह के वहां पर लोग थे, which were known as whites and blacks. We all Indians are normally termed as blacks. सर लेकिन मैं तो गोरा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड, आप एशिया के किसी भी रीजन से आते हो, टेक्निकली दे कॉल यू एज ब्लैक एशियंस, ब्लैक्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. उनकी मेंटालिटी है, वो लोग आपको ऐसा बोलते हैं. बट एनीवे, राइट नाउ हम टॉपिक उस पर नहीं लेके जाते हैं, हम जाते हैं साउथ अफ्रीका पे. तो साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी सॉ दिस डिस्क्रिमिनेशन, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. Racial, race, RACIAL. So I'm just writing the word over here. Racial discrimination. Based on the race, आप कौन से जगह से हो, आप कौन से प्लेस से हो, क्या आप यहाँ से हो या नहीं हो, and so on and so forth. So all of this particular thing led to discrimination. So दो अलग अलग गुट बन गए, दो अलग अलग पार्टीज बन गई, एंड दोनों के अंदर हमेशा कंटिन्यूअस फाइटिंग चलती थी. Mahatma Gandhi saw this, and Mahatma Gandhi did not like this at all. Mahatma Gandhi came up with a very new concept, and ध्यान रखना that these all African place, Asian places भी majority colonies बनी हुई थी उस टाइम पे. Colony मतलब not आजकल के colonies, but Britishers and these particular the major European powers like the France and all of these were actually dominating these places. तो इंडिया, जैसा कि आपको मालूम है, अंडर द ब्रिटेन के अंदर आता था, जिसको हम लोग ब्रिटिश बोलते हैं. सो जब ये लोग अंदर आते थे वहां तक ठीक था, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना, वो भी ठीक था. बट देन दे केम टू अ कंट्री एंड उन्होंने कंट्री के सिटीजन्स को इल ट्रीट करना चालू कर दिया, बुरा ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया, विच वॉज रॉन्ग. एंड महात्मा गांधी डिड नॉट लाइक इट. दे सेड व्हाइट्स के लिए अलग लॉज और ब्लैक्स के लिए अलग लॉज. ऐसा क्यों? यदि आप मल्टीप्लेक्स में जाओगे, इफ यू विल रिकॉल सम ऑफ द बुक्स, यदि आप कोई हिस्ट्री की बुक्स यदि आप पढ़ने में उतने इंटरेस्टेड हो, आप देखोगे कई जगह पर इतने ज़्यादा बुरे सेंटेंसेस वो लोग बोलते थे हमें. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स हु वर देन द कॉलोनिस्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट ब्रिटिशर्स. आजकल तो वो लोग हमारी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं. दोज ब्रिटिशर्स यूज्ड टू से, वो जब मल्टीप्लेक्स या मॉल तो उस टाइम पर नहीं होते थे, सो जब वो सिनेमा हॉल जाते थे वहाँ पर दो तरह के बोर्ड्स लगते थे. एक लगता था अपर क्लास, उसमें लिखा रहता था ओनली फॉर वाइट्स. जैसे अपने यहाँ पर आजकल वो डीसी बालकनी या समथिंग इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस टाइम पे होता था अपर क्लास. सो वहां पर केवल वाइट लोग बैठेंगे, रिच भी नहीं, केवल वाइट्स. और नीचे और वहीं पर ही एक और बोर्ड लगा हुआ रहता था, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड. मतलब काले लोग, whether they are from Africa or they are from India, and dogs are not allowed. Imagine, ये हॉल ब्रिटेन में नहीं था, ये हॉल इंडिया में था, ये हॉल्स अफ्रीका में थे, जहां पर इस तरह के लोगों को अलाउड नहीं था. आप ही की कंट्री में आपको कोई बोल रहे हैं कि डॉग्स एंड यू आर नॉट अलाउड, हाउ विल यू फील? दिस लेड टू द राइज इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. 1857 के अंदर ये नेशनलिज्म की आग लगना चालू हुई, which actually created the spark. If you will read, history of 1857, the war struggle, the movement of 1857, Rani Lakshmibai, Mangal Pandey, all of these, वहाँ पर भी एक मास मूवमेंट हुआ था. बट द प्रॉब्लम इज
हम लोग बाय डिफॉल्ट डिवाइडेड हैं अपने अपने कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, ये वो एंड सो एंड सो फोर्थ। उसकी वजह से मूवमेंट तो हुआ, स्प्रेड भी हुआ, लगा कि बस अब हम जीतने वाले हैं, बट हमारे ही कुछ लोगों ने हमारे साथ में प्रॉब्लम करना चालू कर दिया एंड दे बिकम ट्रेटर्स। वो लोग ब्रिटिश की तरफ में चले गए या वो लोग दूसरी कॉलोनीज की तरफ में चले गए एंड अनफॉर्चुनेटली दैट मूवमेंट वाज डाउज्ड ऑफ। बट इस टॉपिक के अंदर जो अपन आज पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक आपका काइंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले एरा से चालू होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि महात्मा गांधी जब वहां पर अफ्रीका में थे, उन्होंने क्या किया। अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी एक नॉवेल कॉन्सेप्ट लेकर के आए। लेट्स राइट अगेन अनदर न्यू वर्ड नोन एज नॉवेल। ये वर्ड आजकल बहुत चल रहा है, सुना तो हो गई आप सबने, नहीं? थिंक अबाउट इट, नॉवेल कोरोना वायरस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नॉवेल कोरोना वायरस? सब न्यूज बड़ी देखते हैं, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नॉवेल कोरोना वायरस? नॉवेल मतलब वो नॉवेल पढ़ता था वायरस, न्यू बुक्स, नहीं। नॉवेल मतलब नया, समथिंग न्यू, a new concept, and that is known as novel. Corona is nothing else but is a family of virus, a kind of a family of virus, और novel कोरोना वायरस बिकॉज ये कुछ नया है जो आज तक डिटेक्ट नहीं हुआ, जिसका हमने अभी केवल नाम दिया है। ओके, नाउ एनीवे, सो महात्मा गांधी केम अप विद दिस नॉवेल कॉन्सेप्ट एंड दिस नॉवेल और द न्यू कॉन्सेप्ट वाज महात्मा गांधी, आई मीन दिस वाज द कॉन्सेप्ट, नहीं, द कॉन्सेप्ट वाज सत्याग्रह। सत्याग्रह। So this was a new concept, a novel concept. Now why was this so new concept and novel concept? आज तक हिस्ट्री के अंदर आप चेक कर लो किसी भी कंट्री की, इतना खतरनाक नोवेल कॉन्सेप्ट कभी नहीं आया जो कि अभी आया हुआ है। मैं वायरस की बात नहीं कर रहा हूं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह की बात कर रहा हूं। इमेजिन, बिना स्टिक लिए हुए, बिना गन चलाए हुए, बिना सोड लिए हुए, बिना कुछ करे हुए, मतलब फाइटिंग करे बिना, एंड एक्चुअली कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस। नाउ यू विल से सर ये केवल महात्मा गांधी ने थोड़ी किया था। आई एम नॉट सेइंग महात्मा गांधी ने ही इंडिपेंडेंस लाया। ऑफ कोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ sacrifices made by a lot of honorable and respected men, but I am saying that this movement was so unique because इसके अंदर he clearly said that the emphasis or the focus is on only one thing, and that is truth. उन्होंने बोला कि यदि हम सारे के सारे लोग कलेक्टिवली एक सही कॉज के लिए लड़ रहे हैं, सही कॉज क्या, कि ये हमारी कंट्री है और आप यहां से बाहर जाओ, हमें हमारी कंट्री का रूलिंग खुद संभालने दो, लेकिन हम आपसे फाइट नहीं करेंगे, हम आपको बहुत ही हम्बल वे से आपको समझाएंगे दैट प्लीज आप यहां से जाओ, आप गलत कर रहे हो हमारे साथ में। एंड महात्मा गांधी ने उस टाइम पर ये जो नोवेल मूवमेंट लॉन्च किया बैक इन अफ्रीका, एंड दैट वाज सत्याग्रह। सत्याग्रह में होता क्या था? मास मूवमेंट्स, पब्लिक इकट्ठी होती थी पीसफुली, शांति से। दैट डज नॉट मीन्स क्वाइट, दैट मीन्स वी आर ओनली प्रोटेस्टिंग। हम बस बैठे हुए हैं, हम बस आपसे फाइट नहीं कर रहे, आपको मार नहीं रहे हैं, बट वी आर नॉट लाइकिंग दिस। एंड दिस लेड टू अ फियर in the minds of oppressors. What do you mean by the word oppressor? Oppressor, somebody who oppresses, somebody who suppresses you, somebody who dominates you, that is known as oppressor. महात्मा गांधी ने बोला कि यदि हमने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, यदि हमने नॉन वायलेंस का सपोर्ट लिया, तो ये जो ऑपरेसर हैं ये डरना चालू हो जाएंगे। इनको अंदर से लगेगा कि यस, ये जो लोग हैं ये फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, ये केवल अपनी बात रख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी बात सही है या गलत, और यदि हमारे कॉन्सेप्ट में दम है, यदि हमारे कॉन्सेप्ट में सच्चाई है, तो वी विल बी ओवरकमिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम गिवन टू अस। सो महात्मा गांधी का ये जो नोवेल कॉन्सेप्ट था नोन एज सत्याग्रह, इट मेड रिपल्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ध्यान रखना, महात्मा गांधी वॉज ट्रूली नॉट ओनली एन नेशनल लीडर, ही वॉज एन इंटरनेशनल लीडर।
सो जब साउथ अफ्रीका के अंदर उनको सत्याग्रह का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, एंड जब वो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा वहाँ पर चला, जब महात्मा गांधी का लॉ खत्म हुआ, देन ही सेड लेट्स कम बैक टू इंडिया। उनको इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छे ढंग से मालूम थी। उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू लॉन्च द सेम सत्याग्रह मूवमेंट राइट ओवर देयर इन इंडिया, राइट इन इंडियाज हार्ट। ही सेड बट अभी तो मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। इमेजिन करो यदि मैं कल चला गया मार्केट के अंदर और मैंने बोला सब जने अपना काम बंद करो और मेरा सपोर्ट करो, क्या लगता है कोई मेरा सपोर्ट करेगा? आई डोंट थिंक सो। फॉर दैट आई नीड टू गो, आई नीड टू अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज जर्नी। सो व्हेन डिड महात्मा गांधी केम बैक? पहली डेट जो आपको ध्यान रखनी है इन सीबीएसई, दैट इज इन 1915। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915, 1915। महात्मा गांधी ने अलग अलग जगह पर इंडिया में सर्वे करना स्टार्ट किया। सर्वे मतलब पेन पेपर से नहीं, बट ही केप्ट ऑन गोइंग टू प्लेसेस। शॉकिंगली जब आप किसी भी लोगों को या किसी भी आदमी को ऑब्जर्व करते हो तो आपको सच मालूम पड़ता है, ट्रुथ आपको सच मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में वो आदमी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। Let us say suppose I am shouting on my students, which I should not of course, but I am shouting on my students. आपने इतना होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। Now student देख रहा है पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है, मतलब why is he shouting? I have already paid the fees, so why is he so concerned about me? Think about it. He is concerned about all of you because he wants that his students should get decent marks. They should be qualified as very good students. क्योंकि यही स्टूडेंट्स जब कल यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जापान जाएंगे, एंड व्हेन दीस गाइस से ओह सो फ्रॉम व्हिच कंट्री आर यू? आई एम एन इंडियन। इमेजिन करो उस टाइम पर आपका तो नाम अच्छा होगा ही, मेरा भी नाम ऊपर हो जाएगा। क्यों? मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया था, बिकॉज नाउ ट्रुथ विल प्रिवेल, सच, बिकॉज आप भी उतने अच्छे सिटीजन बनना चालू हो जाओगे। नाउ कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए तो ही केम इन द ईयर 1915। महात्मा गांधी ने एक्सटेंसिव सर्वे करना चालू किया। कहाँ का? इंडिया का। अलग अलग जगह पर गए। देन महात्मा गांधी ने लोगों की प्रॉब्लम्स देखी, एंड फाइनली ही स्टार्टेड हिज सत्याग्रही मूवमेंट। एंड व्हाट वाज सत्याग्रही मूवमेंट ऑल अबाउट? सत्याग्रही कौन थे? जो भी महात्मा गांधी के इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते थे, द पीपल हु वांटेड टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद महात्मा गांधी इज दिस मूवमेंट were known as सत्याग्रही। जो सत्याग्रह फॉलो कर रहे हैं, सत्याग्रही। सत्याग्रही में महात्मा गांधी ने केवल एक चीज बोली, द एम्फेसिस इज ऑन ट्रुथ। उनका एक और सेंटेंस था, जस्टिस विल प्रिवेल। जस्टिस मतलब न्याय, मतलब जस्टिस की हमेशा जीत होगी, सच की हमेशा जीत होगी। एंड ही रोट दिस वेरी फेमस बुक नोन एज हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज वॉज अ वेरी फेमस बुक ऑफ दैट टाइम, जो किस मूवमेंट पर थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ना महात्मा गांधी के साथ में सत्याग्रही आखिर जुड़े कैसे? सबसे पहले इफ यू कैन सी द नेक्स्ट डेट इज 1916, 1916। 1916 महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण, बिकॉज वहां से लोगों ने उन्हें बुलाया, क्योंकि महात्मा गांधी के छोटे 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 किस्से अलग अलग जगह छपना चालू हो गए थे। देन चंपारण, महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण विच इज अ प्लेस इन बिहार। वहां पर प्लांटेशन वर्कर्स थे। प्लांटेशन वर्कर्स मतलब द रबर प्लांटेशन वर्कर्स, जो रबर के ट्री में से उसके जो सैप को निकालते हैं, जिससे आपके टायर्स बनते हैं, रबर्स या इरेजर्स बनते हैं, लेटेक्स बनता है, ओके, वो वाले वर्कर्स। प्लांटेशन वर्कर्स की उन्होंने प्रॉब्लम सुनी कि जो प्लांट है वो उन्हें प्रॉपर्ली ढंग से सैलरी नहीं देता है, जो ओनर्स हैं वो उनसे ढंग से बिहेव नहीं करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ उनके आवर्स हैं, उन्हें खाने को प्रॉपर्ली नहीं देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड महात्मा गांधी ने उन वर्कर्स के साथ में सपोर्ट करना स्टार्ट किया, एंड दे लॉन्च्ड अ मूवमेंट सत्याग्रह। सेम मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह बैक इन इंडिया, ओके। विच ईयर? 1916, चंपारण इन बिहार, फर्स्ट मूवमेंट सत्याग्रह। इस मूवमेंट का इतना इम्पैक्ट पड़ा कि जो ओनर्स थे उन लोगों को फाइनली इन वर्कर्स की बात सुननी पड़ी।
जब ये बात सुनी तो चारों तरफ में ये बात एकदम लाइक अ फॉरेस्ट फायर की तरह फैल गई कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप महात्मा गांधी को बुलाओ, महात्मा गांधी स्वराज जैसा मूवमेंट करेंगे जिसमें नॉन वायलेंस होगा, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। पीपल स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड, ये महात्मा गांधी से दूर रहो वरना ये तो पंगा करेंगे, प्रॉब्लम। लेट्स सी द नेक्स्ट मूवमेंट 1917। देयर वाज अ प्लेस इन गुजरात नोन एज खेड़ा। खेड़ा में there were problem of peasants. Now what is this particular category of people known as peasants? Peasants were those people जिनसे ये so called landlords, जो जमीन के मालिक होते हैं, वो उनसे काम करवाते थे, बट उनकी कंडीशंस बहुत अजीब सी होती थी। थोड़ी बहुत मान लो उनके पास में जमीन भी होती थी, ये उनसे साइन करवा लेते थे, अंगूठा लगवा लेते थे, एंड देन उनकी जमीन खुद ले लेते थे, कब्जा कर लेते थे, इंक्रोच कर लेते थे, या उनको पैसे टाइम पर नहीं देते थे, या उनको बोलते थे कि आप तो हमारे लाइफ लॉन्ग के लेबर हो, बॉन्डेड लेबर हो, आप काम करते रहो। वेरी पुअर कंडीशंस, वेरी हॉरिबल कंडीशंस। Mahatma Gandhi understood these conditions and asked peasants to come collectively and launch Satyagraha movement. And finally, that movement was also won. Then, कब हुआ था ये? 1917. What happened in 1915? Mahatma Gandhi returned from what? From Australia? No. He returned from South Africa. Which was the first place where Mahatma Gandhi launched this movement? That was Champaran in Bihar. What was the name of the movement? Satyagraha. Who were the people who were following Satyagraha? Satyagrahis. What was the motto of Satyagraha? Non-violence, justice would prevail if the focus or the emphasis is on truth. एक और उनका बाय द वे मेन रूल क्या था? यदि आप ऑप्रेसर के सामने कुछ नहीं करोगे और आप सच के लिए खड़े रहोगे, ऑप्रेसर के मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स आना चालू हो जाएंगी। ही विल अंडरस्टैंड दैट ही इज डूइंग रॉन्ग, विच इज सच अ नोवेल कॉन्सेप्ट। बिना लड़े हुए आप फाइट कर रहे हो, बिना लड़े हुए आप फाइट कर रहे हो सर, लेकिन लड़ने का ही तो मतलब फाइट होता है। बिना फिजिकल वायलेंस किए हुए आप फाइट कर रहे हो, आप फिजिकल किसी से फाइट नहीं कर रहे हो, बट आप अपनी फाइट के लिए लड़ रहे हो, बट नॉन वायलेंस। आप मारो, मैं नहीं मारूंगा। अमेजिंग। Now let's talk about the word in 1918. 1918, everybody is, would be knowing this particular place, Ahmedabad in Gujarat. Ahmedabad, Gujarat के अंदर there was this problem of cotton mill workers. स्ट्राइक पर बैठ गए थे एंड वहां पर ब्रिटिशर्स आकर के उनको मारने वाले थे एंड मारा भी था एंड so on and so forth. And Mahatma Gandhi came over there and he again launched सत्याग्रह। जब सत्याग्रह मूवमेंट की वजह से लोगों को उनकी डिमांड्स मीट होना चालू हुई तो अपने आप लोग जुड़ना चालू हो गए महात्मा गांधी से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू नीड टू लर्न दिस फ्रॉम हिस्ट्री, दैट इज अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर। इफ यू वुड लाइक टू परस्यू योर करियर इन पॉलिटिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे जस्ट बिकॉज समबडीज फादर इज अ लीडर तो इसका मतलब आप भी लीडर बन जाओगे, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू नीड टू कनेक्ट टू पीपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, यू नीड टू नो कि उनको क्या क्या दिक्कतें डेली लाइफ में आ रही हैं, एंड यू नीड टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू देम। केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उनका सॉल्यूशन बनो, फिर देखो आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो महात्मा गांधी went in 1918, he went in Ahmedabad because he was roaming all across the country. He went in 1918 in Ahmedabad, which is in Gujarat, and he solved this problem of the cotton mill workers. तब तक जब 1918 तक महात्मा गांधी का नाम बहुत फेमस हो गया था। Everybody wanted to know who is this man? कौन है ये आदमी जो जहां पर भी जाता है वहां पर हमारे ही फायदे की बात करता है? कौन है ये आदमी जो हमारे लिए सच के लिए लड़े जा रहा है? कौन है ये लीडर? Everybody was just so interested in Mahatma Gandhi. Now problem was, before we move on to the topic of 1919 and the Rowlatt Act, उसके पहले you need to understand a lot of conditions actually changed, which were also in favor of India. ब्रिटिशर्स एक्चुअली में यहाँ पर कोई वॉर करने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे। ट्रेड मीन्स बिजनेस, क्योंकि उनका माल वहां पर, माल मतलब उनका जो सामान उन्होंने वहां पर बनाया था, द गुड्स एक्चुअली विच दे मेड बैक इन देयर होमलैंड वाज नाउ बीइंग अनेबल टू बी सोल्ड बिकॉज देयर वर नो न्यू मार्केट्स। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप इसके बाद में पढ़ोगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में यही हुआ था, आपने एक के बजाय बहुत सारा
मास प्रोडक्शन करना चालू कर दिया था। अब प्रॉब्लम विद मास प्रोडक्शन इज ओनली वन, मैंने यदि ये एक बॉटल है, मैंने यदि ये 500 बॉटलें बना दी और मैं यदि तलेगांव में बेचना चाहूँ या पुणे में बेचना चाहूँ या अमेरिका में बेचना चाहूँ या ऑस्ट्रेलिया में बेचना चाहूँ, आई कैन सेल इट। बट यही यदि मैंने 50 लाख बॉटल्स बना दी एंड आई एम थिंकिंग टू सेल इट ओनली एट वन प्लेस, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। उसके लिए मुझे नए नए मार्केट्स चाहिए पड़ेंगे एंड ब्रिटिशर्स को न्यू मार्केट के तौर पे मिला इंडिया, मिला अफ्रीका। ब्रिटिशर्स ने बोला लेट्स बाय द वे गो टू इंडिया एंड लेट्स सेल आवर मटेरियल ओवर देयर। जब उन्होंने मटेरियल बेचना चालू किया, धीरे धीरे उनकी अकल चलना चालू हुई। उन्होंने कहा ये इंडियंस ना वैसे भी इडियट्स हैं, ये तो आपस में ही फाइट करे जा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने बोला ये तो आपस में ही फाइट कर रहे हैं, लेट्स डू वन थिंग। वो इसके तरफ में गए, उन्होंने बोला वील ट्राई एंड सपोर्ट यू, आप हमें कुछ पैसे दो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। फिर वो इसके पास में गए, बोला आप हमें पैसे दो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ना ये कभी इसके पास में आया, ना ये कभी इसके पास में गया, और बीच में ब्रिटिशर्स बैठ के पैसे खाते रहे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे होल्ड इंडिया में चारों तरफ फैल गया था। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स की आर्मी आ चुकी थी पूरी। नाउ प्रॉब्लम हैपेंड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आप खुद सोचो, यदि आप ब्रिटेन के हेड होगे, यदि आप क्वीन एलिजाबेथ होगे, और यदि आपको अपने कंट्री के आर्मी को भेजना पड़ेगा वॉर के अंदर, उससे बेटर तो ये है स्लेव्स को भेज दें, इंडिया के सोल्जर्स को भेजा जाए ट्रेन कर करके। बट तब तक ब्रिटेन का बहुत सारा बिजनेस चालू हो चुका था इंडिया में। हम सब लोगों की एक हैबिट है कि हम सब लोग हमेशा इंडिया की बुराई करते हैं, विच इज एक्चुअली एंटी नेशनलिज्म। एंटी नेशनल वर्ड सुना है, एंटी नेशनलिज्म। अब जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह की तारीफ तो करो प्लीज। इफ आई एम रिसाइडिंग इन इंडिया, आई लव इंडिया and I always say I am very proud to be an Indian. I just love India from bottom of my heart. Of course problems किसको नहीं होते हैं। Right now there is lockdown, तो क्या lockdown अकेले आपके लिए है? No, lockdown is for everybody. So understand that this particular nationalism की feeling जब ये पूरे तरफ में इंडिया के अंदर फैल गया था ना, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को मालूम था कि इंडिया का जो कॉटन है, द इंडियन कॉटन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उनको इसका रेट मालूम था, उनको मालूम था कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी कॉटन है। तो वो लोग क्या करते थे, इंडिया में कॉटन को प्रोड्यूस करते थे, फिर भेजते थे इसको शिप करके कहाँ, ब्रिटेन। वहां पे इनसे क्लॉथ बनाते थे, उस पर स्टैंप एंड सील लगता था और ब्रांड बन के आता था इंडिया, और दोबारा से ये मटेरियल कौन खरीदता था, इंडियंस। कॉमन सेंस सोचो, आपके यहाँ की चीज बाहर जाती है, ब्रांड लगता है, फिर से आती है, और इंडियंस, एंड एट 10 times द कॉस्ट। एंड ब्रिटिशर्स वर डूइंग सो बिकॉज इंडिया में तो उनको कॉटन फ्री में मिल रहा था, बिकॉज मालिक तो वो बन के बैठे हुए हैं। आप तो वैसे भी स्लेव्स हो, आप मतलब अपन सब स्लेव्स थे, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिस गेम चेंज्ड। मैनचेस्टर, जो कि एक बहुत फेमस प्लेस है यूके के अंदर, नाउ मैनचेस्टर के अंदर बाय द वे ये प्रॉब्लम होना चालू हो गया दैट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहां पर एक रूल लगा दिया गया, एंड दैट रूल सेड कि वहां पर जितने भी जो कॉटन मिल्स हैं उन सबको बोला गया कि आप अभी ये कपड़े वगैरह बनाना बंद करो, एंड आप बाय द वे वॉर के अंदर जो चीजें लगती हैं लाइक वेपन्स एंड ऑल अदर थिंग्स, वो सारी की सारी चीजें बनाना चालू कर दो। अब इस टाइम पर आप बोलोगे सर इसका हिस्ट्री से क्या कनेक्शन? एज आई टोल्ड यू, हर एक की गलतियों से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैनचेस्टर ने के जो मिल्स थे, जब वहां पर कॉटन का प्रोडक्शन एंड कॉटन का द गारमेंट इंडस्ट्री स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन और शटिंग डाउन, वो ट्रेड डिक्लाइन होना चालू हो गया, धीरे धीरे वो ट्रेड कम होना चालू हो गया विद इंडिया। अब इससे हुआ क्या इंडिया में लोगों ने कपड़े पहनना बंद कर दिए? नो, नाउ इंडिया गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इन्होंने अपने यहाँ पर नए नए फैक्ट्रीज बनाना चालू कर दिए, न्यू फैक्ट्रीज स्टार्टेड कमिंग अप। किसके वजह से? बिकॉज वहां से उनका धीरे धीरे होल्ड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। किनका? ब्रिटिशर्स का। तो मैनचेस्टर के अंदर इंडस्ट्रीज धीरे धीरे कम होना चालू हो गई थी, और इंडिया के अंदर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज क्या हो गई थी, बढ़ना चालू हो गई थी। द सेकेंड प्रॉब्लम ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग। द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज दैट जब ये कॉटन प्रोडक्शन, क्योंकि वहां पर जब इंग्लैंड ऑलरेडी या ब्रिटेन ऑलरेडी एक वॉर के अंदर गया हुआ है अपने लोगों के साथ में, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं इंडियन से भी हम यही वाला काम करवाएं।
तो उन्होंने बोला कि आप भी वॉर सप्लाईज बनाना चालू कर दो। तो उन्होंने कॉटन प्रोडक्शन को बोला कॉटन प्रोडक्शन बंद कर दो अभी के लिए, क्योंकि वहां की इंडस्ट्रीज जो मैनचेस्टर में थी वो तो पहले से ही बंद हो रही थी, वहां पर तो पहले से ही वॉर का मटेरियल बन रहा था। उन्होंने इंडिया को बोला कि आप कॉटन प्रोडक्शन बंद कर दो या कम करना चालू कर दो। जब इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन कम होना चालू हुआ तो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेडर्स ने सोचा जब वहां के लोग कॉटन नहीं खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है फिर हमें खुद का मटेरियल कुछ बनाना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ इंडिया स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इट्स ओन कॉटन इन सच अ वे कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट कर पाए। और इसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आना चालू हुई। मुंबई, द मुंबई कॉटन मिल्स, वेरी वेरी फेमस। यदि आप बॉम्बे कॉटन मिल सर्च करोगे ऑन नेट यू वुड सी इट वाज अ वेरी 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 फेमस फैक्ट्री। नाउ जब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट डिक्लाइन होना चालू हुआ, फाइनली जब वॉर खत्म हुआ, वॉर खत्म होने के बाद में ब्रिटिशर्स वर नाउ प्रिटी वीक, बट उनको तब भी इस चीज़ की खुशी थी कि हम तो ऑलरेडी, इंडिया तो हमारी ही स्लेव कंट्री है, हमारी ही कॉलोनी है। आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स के इतने अजीबोगरीब टाइप के रूल्स थे, दे वर जस्ट सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी लोगों के लिए अलग रूल्स, इंडिया के लिए अलग रूल्स। इन 1919 ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया भी हमारे हाथ से ना निकल जाए, और ये महात्मा गांधी का चारों तरफ में हंगामा बहुत ज्यादा चल रहा था। इट वॉज जस्ट कैचिंग अप, इट वॉज लाइक अ ट्रेंड। जैसे आजकल आपके इसमें चलता है द स्नैपचैट, द फेसबुक, द इंस्टा, उस टाइम पे महात्मा गांधी चल रहे थे। एवरीवेयर देयर वॉज जस्ट ओनली वन न्यूज, महात्मा गांधी, स्वराज मूवमेंट, ट्रुथ विल प्रिवेल। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये, चारों तरफ। Britishers got a bit scared. This Mahatma Gandhi guy needs to, be taught a lesson. उन्होंने धीरे से चुपके एक लॉ निकाला in the year 1919, which was known as the Rowlatt Act. Now, what was being written in Rowlatt Act? Rowlatt Act के अंदर उन्होंने सिंपल सा एक रीजन दिया कि हम किसी भी सत्याग्रही को, किसी भी सत्याग्रह करने वाले को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को हम डिटेंशन कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिटेंशन? डिटेंशन मीन्स सिंपली हम उन्हें जेल में डाल देंगे। अरे ऐसे कैसे जेल में डाल दोगे, घर की खेती है? हाँ, घर की खेती है। दिस वॉज रिटन इन राउलेट एक्ट। वी डू नॉट नीड एनी वारंट, वी डू नॉट नीड एनी लॉ। यदि ये रूल पास हो गया उनके पार्लियामेंट के अंदर, विच वॉज इन इंडिया एंड ऑफ कोर्स सपोर्टेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ, यदि ये लॉ पास हो जाता है तो इसका मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर यदि रोड पे उसने पब्लिक को इकट्ठा किया, हम उसे डायरेक्टली जेल के अंदर 2 साल या 2.5 years के लिए डायरेक्टली फेंक देंगे, विच इज रॉन्ग। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें अपनी बात तो बोलने की आजादी है, नहीं, इस टाइम पर नहीं। जब ऐसे मूवमेंट्स होना चालू हुए, जब ऐसे लॉज होना चालू हुए, महात्मा गांधी थॉट नाउ इट्स हाई टाइम, नाउ इट इज हाई टाइम, वी नीड टू डू समथिंग। बट पोस्ट देन दैट इन द सेम ईयर a very unfortunate incident happened, the Jallianwala Bagh massacre. But we are going to read about or study about the Jallianwala Bagh massacre in the next video or in the next class. But as of now, let us summarize what we have studied till now. And guys, I once again request you, I know ये मेरा promise है, but after this video, make sure that ये topic आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए अच्छे ढंग से, because the next sheet is going to come up in the evening for the same part. Okay, now let us see what did we study. We studied the word nationalism in India. So what do you mean by the word nationalism? The feeling of belongingness to our own country is known as nationalism. Why in India? Because we are Indians, we are residing in India, that's the reason why. So nationalism is the feeling of belongingness towards our own country. Okay, कि हम इस कंट्री को बिलोंग करते हैं पहले। Okay, then what happened in 1915? In 1915, Mahatma Gandhi returned from South Africa after completing his law. Next question, which novel idea Mahatma Gandhi came up with? Mahatma Gandhi came up with this novel idea of satyagraha, नया
Satyagraha. Who were the people who followed this movement were known as Satyagrahis. Okay? What was the main motto or the main emphasis or what was the main base or the main focus area of Satyagraha? Satyagraha simply means truth, emphasis on truth. It believed in a system that oppressor will realize his mistake if he is being shown truth. यदि आप उसको सच दिखाओगे कि सही चीज ये होती है, the oppressor will realize his mistake and your respect in his eyes will ultimately grow. That was Satyagraha. Satyagraha was a violent movement or a non-violent movement. It was a non-violent movement. Satyagraha never ever taught anybody to fight physically. You don't require physical fight. But of course, it was a fighting movement. Okay? Now, then what did Mahatma Gandhi did or what did Mahatma Gandhi do after returning from South Africa? He went on to survey different places in India to understand the problem of people of India. What happened in 1916? In 1916, there was a problem, which was being laid by plantation workers and who were not satisfied by their, plantation owners, and they called Mahatma Gandhi, and this movement started from a place which was known as Champaran and which was in Bihar in the year 1916. Then in the year 1917, in Kheda district of Gujarat, the peasants started a movement known as Satyagraha. This was again being led by none other than Mahatma Gandhi. Peasants were being tortured, were being suffered, were being humiliated by their landowners. They were not being paid properly. They were supposed to, do work for longer hours and still no compensation. Bonded laborers. And that is the reason why 1917 Mahatma Gandhi launched another movement which was in Kheda, which is a district in Gujarat. Then 1918, the same Satyagraha movement led by again Mahatma Gandhi was started from where? From Ahmedabad, which is where? In Maharashtra? No. Telangana? No. It's in Gujarat. And this was a movement led by the cotton mill workers. They were putting up their demands in front of the mill owners, but the mill owners simply called up the police of the Britishers and they did not allow their demands to be met. And that's where Mahatma Gandhi came into play. Mahatma Gandhi also wrote a very, very famous book named as Hind Swaraj. Hind Swaraj is a book which was being based on non-cooperation movement. Okay. In 1919, but before than that, what happened? Before than that, during the World War, British asked Indian cotton growers to stop producing cotton because the Manchester, the cloth, all the companies, by the way, which were making these garments were asked to make war material, which led a decline in the trade. And this was an opportunity for the Indian traders to grow their own business. And that's what Indian traders did. They did what? They started opening up their own units. As cotton trade also declined because the same ruling was being done for India too, that you guys stop now producing cotton and you also start preparing the war, requirements. And that also led the traders to start producing more cotton of their own and make sure that their industries are being now, in a working condition. In 1919, Rowlatt Act. Rowlatt Act was being hurriedly passed, was being hush-hush passed. चुपचाप से pass कर दिया था. Passed by the Legislative Assembly. And they simply said that according to Rowlatt Act, any political, person, any satyagrahi, any mass movement holder, any leader would be directly detention in jail for 2 or 2.5 years, which was not good. So this was today's topic on nationalism in India, where we did discuss all of this. In the next lecture, we are going to read about the other movements, which is what about the Jallianwala Bagh massacre? Why did Satyagraha movement stop?
what happened in non-cooperation movement, what happened in another the non-cooperation movement, why it was being called off, what happened in Chauri Chaura movement, what happened with the Indians at that time, what happens with the extremists, what happened with the first prime minister. We are going to read all this in the next lecture. Once again guys, thank you so much for watching this video. See you and enjoy, and remember to stay indoors and be safe. Thank you so much guys.